क्लर्क का फॉर्म आ गया है, SBI क्लर्क। कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं देख लेते हैं आज अपन, और इसमें कितना काम करने की ज़रूरत है। The manager decided to cancel, postpone. The bank was announced that it would its customer support hours during the festive season extend. Extend करना. The librarian asked the students to the books back on the shelf. Place desk newspapers in a neat pile before leaving. Leave the equipment. Place the equipment in the storeroom. It is difficult to his behavior. He changes mind so often. Predict करना, understand करना, explain आएगा यहाँ पे. Explain the exact cause of the disease. Nobody could explain how the fire started in the warehouse. The fire worker began to blank against the unfair wage policy. Protest और complaint. Object भी हो सकता है, agitate हो सकता है. Decided to over the new agriculture law. Protest. Grammatical और contextual दोनों है. Scarcely had the finance minister concluded the presentation. Scarcely के साथ when आता है, hardly के साथ when आता है, no sooner के साथ then आता है. रिवीजन हो गया. Scarcely had the finance minister has concluded the presentation when the analyst began dissecting the capital gain amount. A और E का AE दो में है. BD को चेक करो. To curb speculative trading, the union budget raised the security transaction tax on option to 0.15% हो सकता है. VFCF last, the committee recommended that the public sector bank modifies its structural lending term to say small. All are correct. Contextually तो all correct है. कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे टिक करते हैं, ठीक है. ग्रामर छोड़ देते हैं. रेगुलेटरी एजेंसी अक्रॉस यूरोप आर क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स दैट प्रेजेंटल यूजर. ए और ई BF के साथ चेक कर लो. नॉट ओनली डिड द ऑटोमोटिव कॉन्ग्लोमरेट पाइवट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, बट इट ऑल्सो हैवीली इन्वेस्टेड डोमेस्टिक सॉलिड स्टेट बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर. BF, AE और BF. CD चेक करो. इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल ऑडिटर आर डेवलपिंग अ न्यू मैट्रिक्स to evaluate the carbon footprint to cross-border supply chain. All are correct है यार. ग्रामर चेक नहीं कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट चेक कर रहा है. द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द टेक जायंट आफ्टर रिसीविंग मल्टीपल कंप्लेंट्स. तो A और D के साथ AD, BE और CF चेक कर लो यार. Although the e-commerce firm recorded a drop in a gross merchandise value, it managed to improve its नेट प्रॉफिट मार्जिन थ्रू अग्रेसिव कॉस्ट कटिंग्स. तो C और F कंप्लीट हो सकते हैं. AD और CF भी चेक करना पड़ेगा. सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉन्ग्लोमरेट हैज़ फाइनलाइज द क्रॉस बॉर्डर मर्जर टू एक्सपांड देयर एशियन फुटप्रिंट्स. यार क्या है, सब कुछ एक जैसा आ रहा है. द टेक कॉन्ग्लोमरेट अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू एक्सपांड ऑपरेशन. इट हैड बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन यूरोपियन मार्केट. A और D. BE or CF, senior executive prefer allocating resources to domestic projects than exploring unpredictable investments in emerging economies. सब करेक्ट ही आ रहा है भाई, क्या ही है. कॉन्टेक्चुअली तो सभी करेक्ट बैठ रहा है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू होल्ड द रेपो रेट steady to ensure inflation aligned with its target. A or D. ADVE, the more aggressively retail trader deployed leveraged option. The higher भाई साहब मेरे को लग रहा है ग्रामर रही होगी सब में. The hungry wolf silently stalked the grazing deer across the frozen river bank. C or D.
The ambitious architect carefully designed a skeptical building using only recycled material, impressing every sustainable critic who attend the grand ना एक मिनट नहीं skeptical और sustainable B और D. The ambition architect carefully designed a sustainable building using only recycled material, impressing every skeptical critic. The honest banker politely explained the necessary loan terms to the confused customer who finally signed the necessary. यहाँ पे B और D रिप्लेस हो जाएगा. The honest officer seized the stolen goods recovered the stolen goods seized from the deserted road and filed a detailed report. A or B? The honest officer promptly rejected the tempting offer made by the spotless नहीं होगा ना accused होगा B और D. Accused businessman determined to maintain his spotless reputation throughout his long and distinguished career. बाद में 9 क्वेश्चन है क्या? रिजम्पशन तो रिजम्पशन यानी होगा फिर से कंटिन्यू करना. देखो तो ए और 2 तो ये दोनों सेम है, सिनोनिम हो सकते हैं, तो ये ऑल ही करेक्ट है यार. करेक्टली रिजम्पशन यानी मेरे को लग रहा है कंटिन्यू करना. डिसर्न करना होना मतलब क्लैरिटी करना, क्लियर करना, मतलब नेविगेट वाला नहीं डिसर्न करना ना. तो डिसर्न पॉलिटिशियन नहीं होगा. इट वाज हार्ड टू डिसर्न द सबटल डिफरेंस. यहाँ पे देखो नेविगेट कर रहा है, क्लियर कर रहा है दैट सबटल डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर लुकिंग सिग्नेचर. तो 2 करेक्ट है. दे कमिट टू डिसर्न द न्यू पॉलिसी एड्रेस द नेविगेट करना, मतलब यहाँ 2 और 3 हो सकता है या फिर ओनली 2 होगा ना कि 2 और 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है. एक मिनट क्या पूछ रहा है वो? करेक्ट वाले पूछ रहे हैं ना. यस. रिप्रोच नहीं पता, थोड़ा डाउटफुल हूँ इसको लेके. When families who can afford 12 मिनट है ना अभी. When families who can afford the finest school begin looking beyond them, education system should pay attention. For generations, success followed a familiar route: admission to a reputed school, good examination results, and entry into prestigious university. That pathway still exists, but its adequacy is increasingly being questioned. As artificial intelligence reshapes knowledge and work, many affluent families are investing in experience that classroom often treat as optional: entrepreneurship, financial literacy, AI awareness, internship, public speaking, and problem solving. Their choices should not be copied blindly, but they raise an important question. If conventional schooling is not enough, why are those with access to the best schools still searching? Artificial intelligence has changed the value of information. Knowledge that once acquired hours of research is now instantly accessible. AI tools can generate presentation, analyze data, write code, and answer complex questions. Possessing information is no longer enough. The real advantage lies in knowing how to question, verify, and apply it responsibly. This makes human capabilities such as critical thinking, creativity, communication, emotional intelligence, ethical judgment, and adaptability more valuable than ever. Yet, these abilities remain underdeveloped in many classrooms. Schools continue to reward compliance over curiosity, speed over depth, and standardized response over original thought. Examinations serve an important purpose, but performance should not become the sole measure of success. A child may score highly without learning to think independently, collaborate effectively, or make sound decisions. Many affluent families are responding by exposing children to experience beyond academics. Outdoor expedition, internship, entrepreneurial projects, community services, and debates help develop resilience, leadership, and problem-solving skills. Equally important is willingness to let children struggle. Failure, when supported by reflection and guidance, is a powerful teacher. A failed project can improve planning, a difficult presentation can build confidence, and disagreement can strengthen negotiation skills. Artificial intelligence reinforces this need. As a routine task become automated, education must move beyond memorizing information. Students should learn to evaluate AI-generated content, identify bias, verify resources or sources, protect privacy, and make ethical decisions. Technological literacy should include understanding both the capabilities and the limitation of intelligent machines.
कहाँ पे था मैं? ठीक है, ट्रेडिशनल स्कूल रिमेन indispensable. They provide structure, discipline, mentorship and foundational knowledge. The real question is whether they are evolving quickly enough. This challenge is especially relevant in India, where educational success is often measured by board result, exam, entrance examinations, and institutional prestige. These achievements matter, but long-term success depends equally on judgment, adaptability, and lifelong learning. The greatest risk is that future-ready education becomes another privilege available only to those who can afford it. Fortunately, many meaningful reforms require more imagination than money. School can introduce teamwork, community projects, student-led discussion, public speaking, financial awareness, age-appropriate AI literacy, and opportunities to solve real-world problems. The National Education Policy 2020 already advocates competency-based and experimental learning. The challenge lies in implementation. The choice of affluent family should not be viewed as a model to imitate blindly, but as a signal that education must evolve. The future will belong not simply to those who score the highest marks, but to those who can think independently, learn continuously, adapt confidently, and remain deeply human in any age shaped by intelligent machines. This is not elite education, it is the education every child deserves. काफ़ी बड़ा था भाई, पैसेज इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है थोड़ा सा. According to the passage, what has artificial challenge intelligence changed about the value of information? AI has made information unreliable, so students must learn to distrust. No, AI has made information instantly accessible, shifting the real advantage from possessing knowledge to questioning, verifying, and applying it responsibility. Correct. The author says school reward compliance over curiosity, speed over depth, and standardized response over original thought. What does this criticism suggest? School are deliberately suppressing students' creativity to maintain discipline and order in classroom. ये हो सकता है. ये भी हो सकता है. The current school system values obedience and quick uniform answers more than independent thinking and deeper understanding. Independent की बात हुई है 2 बार. Teacher in India not qualified enough. Wrong. Indian school or foreign curriculum. Wrong. In school must increase number of subject. Wrong. ठीक है, तो ये आएगा सेकंड. According to the passage, why is allowing children to struggle and experience failure and incident important? Because failure teaches children to lower their expectation and accept limited outcomes in life. False. Because repeated failure in examination helps student qualify for remedial government program. False. Because failure when supported by reflection and guidance. ठीक है, ये करेक्ट था. Which of the following does the passage mention as something students should learn in order to be technologically literate in the age of AI? How to write software code गलत. How to evaluate AI generated content, identify bias अब भी पढ़ा था. What does the author identify as the greatest risk related to future ready education? AI will make teacher redundant before schools have time to prepare student adequately. No, the examination based system will be abolished before foundational academic skills. ना, will fall behind ना, ये हो सकता है. यहाँ पे आ जाओ यार पहले. ग्रेटेस्ट रिस्क. अच्छा, द फ्यूचर विल ये रिस्क है, सॉरी. Which of the following school level reform does the passage suggest can be introduced without requiring large amount of money? तो community projects वाला था ना, ये रहा. Choose the word most similar in meaning to affluent. Affluent यानी भाई wealthy और financially well off. यहाँ तो हो चुका है, यहाँ पे आ जाओ. 5 मिनट बच रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली, पता नहीं है इसमें कोई एरर नहीं दिख रही है मुझे. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्ज द विलेजर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग इन प्रैक्टिसेस दैट आर हार्मफुल टू बोथ द सॉइल एंड द इन्वायरमेंट. इसमें भी मेरे को कोई एरर नहीं दिख रही है. देयर आर मच ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर्टिकुलरली इन एरियाज वेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अंडर डेवलपमेंट एंड एक्सेसिबल. इसमें भी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है. द मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉइज दैट द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ national holiday declared by the state government. I don't know. The senior official are considering to revise the explanation on loan. Right of भाई साहब, ग्रामर पे काम करने की ज़रूरत है. 5 में बाकी सब ठीक है. मैथ्स खुलना चाहिए.
ठीक है, क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड आ गया, और फिर उसका परसेंटेज आ गया, और फिर कार के बाद डीजल आ गया। ठीक है, ये बन सकता है अपने से। तो मंडे ट्यूसडे, यार इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं पहले। 1 2 3 4 और 5, बढ़िया है, ये बना जाएगा। यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु जॉइन इन एनी स्कूल। ठीक है, टोटल नंबर, फिर बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसको बनाना है। ABC इंटर्ड है, ये वैसे हो सकती है। अच्छा, ये भी वो है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है क्या? इसको मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे से चालू हो रहा है। ठीक है, स्पीड मैथ से पूरा। फिर यहाँ से एरिथमेटिक है, और पूरा एरिथमेटिक है। यहाँ से शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड दिस इज़ फ्राइडे। ठीक है, 2500 टोटल है, तो 25 से मल्टीप्लाई होगा। 25 3 750, पेन भी नहीं चल रहा। 25 500, फिर आ रहा है 10%, 250, 15%, 25 और 15 तो 250। पता नहीं यार, करने देना यार। 10 11 12 125 ना, तो दिस इज़ 5 7 375, और फिर 25 और 25 625। ठीक है, फिर यहाँ आ रहा है कार, पेट्रोल टू डीजल कार। अच्छा, पेट्रोल टू डीजल कार, अच्छा इसी के अंदर का रेशियो है। 4 और 5, 5 आ रहा है, तो 150, तो यहाँ पे आएगा 150, और 300 और 300 600। ठीक है, फिर आएगा 3 और 2 5, 100 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 200। यहाँ आ रहा है 300, 13 और 12 25 आ रहा है, मतलब 10, तो 120 और 130, 7 और 7 14 15 15, 375 एंड 15। दिस इज़ 3 टाइम्स 35 75 3, यहाँ आएगा 25। ओके, 25 का 8 टाइम्स, 25 का 8 टाइम्स कितना होता है? 200 होता है, और यहाँ आ जाएगा 175। ओके, 370 14 15 670। ठीक है, 11 और 14 कितना होता है? 25 होता है, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 ही आएगा। तो 25 इंटू 11, 250, और 25 दिस इज़ 5, ये 7 और 275, 275 माइनस कर दूँगा 5, 5 में से 2 गया, 350। ठीक है, टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड ऑन सैटरडे इज़ 30% मोर देन दिस इज़ 13/10 ऑफ ट्यूसडे। कितने दिन है? 500, दिस 5 15 का 5 1 5 5 650 टोटल है। द नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज एटेड, अनसोल्ड कितनी है? तो वेडनेसडे के दिन पेट्रोल कार्स 130 है मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें से 80 बिक गई है, तो कितनी? 30 और 20 50। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार मैन्युफैक्चर्ड मंडे ट्यूसडे के दिन 900, डीजल कार फ्राइडे 350, 0 और 50, और यहाँ आ जाएगा 8 में से 3 गया, 550। इफ़ द नंबर ऑफ लॉरीज मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे इज़, अच्छा 250 लेस देन नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे के दिन कार कितनी है? 750, मतलब 500 है। ओ भाई, इतनी ईजी आएगा क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेट्रोल कार मैन्युफैक्चर्ड ऑन फ्राइडे पेट्रोल टू द डीजल कार वेडनेसडे 120, दिस इज 40, ओ सॉरी 24, दिस इज 55 24। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं फटाक से। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन, टोटल निकाल लेते हैं। ABCD और E, बॉयज़ निकलेंगे, और फिर निकलेगी गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ट्राइंगल है ना, तो 3 5 0 4 2 0 4 9 0, फिर 2 8 0 एंड दिस 2 1 0, फिर यहाँ पर आ रहा है 2 1 0 अगेन। इसके बीच का कितना हो रहा है? कितना? 70, यानी 35 इसमें जोड़ूंगा तो 245, और फिर वहाँ पे फिर आधा जुड़ेगा, तो कितना आ रहा है? 50 और 20 70, 35 जुड़ेगा ना, 35 जुड़ेगा कितने में? 280 में। दिस इज़ 5 8 9 10 11 का 1 315। ओके, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है 140, और फिर उसके बाद 140 में से 35 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 105। दिस इज़ 105।
माइनस कर दूंगा तो 0 4 और ये 140, दिस इज़ 45 निकालना है तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 11, तो यहाँ बचेगा 7 और ये 175, दिस इज़ 15 निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 5, 8 में से एक गया बचेगा 7 और ये एक 175 40, तो यहाँ बचेगा 40 और दिस इज़ 140, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 105। ठीक है, हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ हु जॉइंट बी और सी। बी और सी के बीच में डिफरेंस, दिस इज़ 0 और दिस इज़ 3, ओ दिस इज़ 0 एंड 6 और 75, वो 70 सॉरी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु जॉइंड इन स्कूल डी टू एफ। डी का रेशियो कितना आ रहा है, डी में बॉयज़ का 140, दिस इज़ 20, दिस इज़ 180 और गर्ल्स एफ में है 48 मोर देन दैट ऑफ बॉयज़, तो 48 इसमें जोड़ दूंगा तो 8 और 2 2 2 8, टोटल पूछ रहा है तो 8 0 2 3 और 408 इन स्कूल ई। ठीक है, 60% जॉइंट साइंस स्ट्रीम, मतलब 210 में से 60%, तो 6 1 6 6 2 12 126, दिस इज़ 4, 20 में से 12 8 84। रिमेनिंग स्टूडेंट मैथ स्ट्रीम 84 है। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु जॉइंट ए बी डी टुगेदर। ए बी और डी के गर्ल्स निकालनी है तो 5 1 3 1 5 एंड 1 4 0, दिस इज़ 4 5 और ये 4 5 5। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु जॉइंट ए, दिस इज़ 2 1 0, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइंट सी, दिस इज़ 4 9 0, 3 और 7। फाइंड द सम ऑफ इनिशियल, क्या निकाल सकता हूँ मैं, निकाल तो सकता हूँ मैं, ए बी एंड सी, दिस इज़ 5x, दिस इज़ 2x प्लस 500 एंड दिस इज़ 3x। ओके, आफ्टर 8 मंथ ए लेफ्ट, तो 8 मंथ यहाँ आ जाएगा। बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 500, तो इंटू 8 और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1000 एंड बी एंड अनदर 2 मंथ्स, मतलब यहाँ ये 10 महीने रहेगा एंड लेफ्ट द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे इंटू 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20x, यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस 5 4 ज़ा 20, मतलब 2000 प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2000, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15x। ठीक है, 20x, 8 और 4 12x प्लस 4000 इक्वल टू 15x। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर, बी टू सी का प्रॉफिट शेयर आ रहा है 12x प्लस 4000, 15x इक्वल्स टू आ रहा है 52 और यहाँ आ रहा है 15, 15 से 15 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 52x। 52x में से अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा 40x और दिस और ये 100, x की वैल्यू आ रही है 100। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो 5x बोले तो 500, 500 प्लस 500, दिस इज़ 1000 और 5 3 से 1500। तीनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सम आ रहा है 3000। ओके, द सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, 1 मिनट, 5 2 से 10, यहाँ पे 1500 आ रहा है और यहाँ पे 5 3 से 1500 आ रहा है, तो मेरा क्यों गलत हो रहा है, बी टू सी, 1 मिनट, एक्स आया ना यहाँ पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सम कुछ मेरा गलत आ रहा है, 5x 100, अरे 100 आ रहा है ना, 500, यहाँ पे 100 और 2 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 500 700 सॉरी, और फिर 300, ठीक है, 1500 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x 400, प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इन द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे 20x इन 20 इंटू 100, 12 into 100, this is 1200 plus 4000, this is 5200 और 15, 1 और 2, तो 2 0 2 0 2 0 गए, 20 52 15। ठीक है, यहाँ पे तो हटा दो इसको। ठीक है, यहाँ से शुरू करो, 45% बोले तो 9/20, 0 0 और 60 और 6 9 540 प्लस 4x इक्वल्स टू 8 दूनी 6 5 40 41 प्लस 140, दिस इज 6, ये 5 और ये 556 और ये 540, जब मैं माइनस करूँगा तो बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 1 3
3 वन जा 3, 4 5, 5/3 और यहाँ आ जाएगा 20, यानी आ जाएगा 100। 100 में से 4 3 12, 13/4, 4 3 120 माइनस का 20। व्हाट द हेल। अच्छा इंटू 160 है ना, एक मिनट, 3 से यहाँ तो 20 आ जाएगा। 3 वन जा 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, राइट। 100 हो जाएगा राइट, हाँ 100 ही होना चाहिए ना। माइनस 4 3 12 और 13/4 है यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 160, तो यहाँ आ जाएगा 40। 4 3 12 का 2 और 1, 4 एकम 4, 520। 520 में से 100 निकलेगा तो बचेगा 420। 167 प्लस 68% ऑफ, ठीक है, तो 68/100 ऑफ 850/17, दिस इज़ 4 टाइम्स होगा ऑब्वियसली। दिस इज़ 1 और यहाँ आएगा 7 एंड दिस इज़ 2 टाइम दिस, और 2 7 2 से यहाँ हो जाएगा 34। 167 प्लस आएगा 34, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 0 और 2 0 1, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1005। 25, दिस इज़ 1/4, 200 200 इक्वल्स टू आएगा 2x माइनस प्लस प्लस ही आएगा, और कितना होगा 40 और 20 60 आ जाएगा, प्लस 260 और 130 260। कैसे गलत हो गया, एक मिनट। 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 20 और 60 हो जाएगा, प्लस का 60 है सॉरी, माइनस का 60 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 140 और 70 आएगा। हाँ 6 के स्क्वायर x माइनस 36 इक्वल्स टू 5 40 का 0 और 4 8 4 32 और 34 प्लस 65%, मतलब 65 इंटू 3, 5 15 का 5 और 195 माइनस 21 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 174, दिस इज़ 4 7 4 1 3, 514 में से 36 प्लस कर देंगे तो 0 3 4 550। 8x स्क्वायर प्लस 66 इंटू 12 कर देता हूँ मैं फटाक से। 660 6 2 12 का 2 1 और ये 13 2 9 और 792 माइनस 504, दिस इज़ 8 8 और 2 24, दिस इज आएगा 46 46 किसका स्कोर आ रहा है यार, ओ सॉरी 36 आ रहा है, शिट 6 का 16 का स्क्वायर 256, सॉरी 256 प्लस 484, दिस इज 22 प्लस 64 किसका होगा 4 का होगा, इक्वल्स टू होएगा प्लस 190 कर दो इक्वल्स टू एक्स, यहाँ होगा 26 जुड़ जाएगा तो 2 और 1 और ये 8 और ये 282 और ये 190, दिस इज 2 16 17 का 7 2 3 और ये 4 472। कितना हो जाएगा यहाँ पे 700 हो जाएगा। 700 में से 216 निकालो, 700 में से 216 निकालो तो यहाँ बचेगा 4, 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गया बचेगा 4 484। 5 9 45 और 5 और 5 9 से 45 और 4 49 495 में से निकालूंगे तो 6 और 5 11, सिर्फ से 6 मिनट है। 8 का स्क्वायर 64 64 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 6 36 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6 256 यानी 262 प्लस का 38, दिस इज 0 0 और ये 300 के पास 60, ठीक है। 308 माइनस 3 दूनी 6 3 और 3 308, जब मैं इसमें से माइनस करूँगा 30 और 8, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 8 ही बचेगा, 2 बचेगा 28, दिस इज माइनस का 28 और 4 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो 2 और 4 दूनी 8 9 10 11 112, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 2x मार्क्ड अप टू सोल्ड आफ्टर 2 डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल इज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 2x है, 25% मतलब 5/4 है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10% का बोले तो 9/10 है, और माइनस हो रहा है 1125/2 आएगा कितना 1800 में 112.5 को जोड़ दूंगा तो 0.5219 और 19125, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 1 दिस इज़ 2 टाइम्स 45x और यहाँ आ जाएगा 20, दिस इज़ 19125/10, दिस कैंसिल हो जाएगा 45 से
x इक्वल्स टू 19125 इंटू 2 45 किससे निकाल सकता हूँ मैं? 3 से निकाल दूँ क्या? 3 से ट्राई करके देखते हैं। 18 6 और 11 नहीं आएगा, 9 आएगा 3 बार में, फिर बचेगा 22 22 नहीं आता, 21 आएगा 7 बार में, 5 बार में। दिस इज़ 1 और 15, ठीक है, इंटू 2 आएगा, ठीक है। 15 क्या निकाल दूँ इसको? 15 से 1 से निकाल दे। 60 कितनी बार में आएगा? 4 टाइम्स में आएगा। थर्ड बचेगा 37 37 नहीं आता, 30 आता है, 3 टाइम्स में आएगा। बचेगा 75 75 कितनी बार में आएगा? 5 टाइम में आएगा, ठीक है। 435 इंटू 2, तो 5 2 10 का 0 और 1 4 3 3 2 6 और ये 7 4 2 8 870। दिस इज 870। शिट, थोड़ा सा गलत हो गया है। 37 नहीं आएगा, 30 आएगा। कितनी बार में आएगा? 3 बार में नहीं आता, 2 बार में आता है, सॉरी। यहाँ पे 2 2 4 और 5 850 होगा, सॉरी, ठीक है। एवरेज प्रेजेंट ए बी सी इज इक्वल्स टू सीज एज आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू होगा सी की एज आफ्टर 2 ईयर्स, सी प्लस 2, ठीक है, मतलब 4 साल बाद की एज है। ए इज़ हाफ द सम ऑफ बी प्लस सी टुगेदर, बी इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन सी। अच्छा, बी इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन सी, दैट इज सी प्लस 4, ठीक है। और इनका भी हाफ, इनका हाफ ए की एज है ये, ठीक है, प्लस ए की एज हो गई, फिर बी की एज फिर से लिख लेता हूँ मैं, सी प्लस 4 और प्लस सी यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2c प्लस 4। बाप रे, इतने सारे सी। यहाँ हो जाएगा 2c प्लस 4, 2 से सबको करते चलता हूँ, प्लस 2c प्लस 4 2 8 प्लस 2c इक्वल्स टू आएगा 4c प्लस 4 2 8। हो माय गॉड, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2c, दिस 4c कैंसिल हो जाएगा, तो 2c इक्वल्स टू 4 और c की वैल्यू आ रही है कितनी? 4। c की वैल्यू 4 आ रही है क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड है क्या? नहीं है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 12 36 महीने, 36 महीने कितना होगा? 12 24 और 36, 3 साल, 3 दूनी। कंपाउंड इंटरेस्ट 18,000 इंटू 3 साल के लिए 120 नहीं 0, दिस इज़ 1/20, दिस इज़ 21/20, 21/20, 21/20, दिस 2 4 और 6 यहाँ आएगा 3 बार में। 21 का क्यूब कितना होगा? नहीं पता। 4 4 1 इंटू 3 कर देता हूँ, 3 4 3 12 का 2 और 1 4 3 12 और 13 इंटू 21 कर देता हूँ, 3 2 6 2 2 4 3 2 6 2 1 3 2 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 8, दिस इज़ 7, दिस इज़ 7, दिस इज़ 2। इसमें से 18 निकाल, 1 मिनट, सीधे सीधे निकल गया क्या मेरा? 83 नहीं निकाल रहा है, 18, दिस इज़ 7 और 7 8 9, नहीं यार, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया क्या मैंने? 36 महीने बोला तो 3 ना, 20 मतलब 100 मतलब 21 बटे 1/20, तो 20 को 21, तो 21/20 ही तो आ रहा है यार। 18 3 4 4 1 3 1 3 12 और 1 13 1 3 2 3 इंटू आ रहा है 21, 3 2 6 2 2 4 3 2 6 2 1 2 और दिस 1 3 2 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 8, दिस इज़ 7, दिस इज़ 7, दिस इज़ 2 7 7 8 3 आ रहा है मेरा आंसर। वाई एक इनकम्प्लीट 12 डेज, हाँ बहुत छोटा सा बच रहा है, तो 12 डेज 20 डेज सेम 24 डेज और 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये 12 दिन में, ये 24 दिन में और ये 4 दिन में, तो 24 ही आएगा। दिस इज़ 2 टाइम्स, दिस इज़ 1 टाइम, दिस इज़ 6 टाइम्स। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, तो 3, तो बचेगी सी की, तो सी की एफिशिएंसी भी तो 3 ही आएगी, ठीक है। सी अलोन कम कर दे 75, दिस इज़ 3/4 ऑफ 24, दिस इज़ 1, दिस इज़ 6, 3 से 3 और 6 दिन में। स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर इज़ 5 टाइम स्पीड ऑफ, ठीक है। 5 और 1 है, तो डाउन स्ट्रीम 6 हो जाएगी और अप स्ट्रीम 4 हो जाएगी, ठीक है। 126 किलोमीटर इज़ 3 मोर देन, अच्छा डाउन स्ट्रीम को ज़्यादा टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम से, तो 126 6x माइनस 48 4x इक्वल्स टू आ रहा है 3 आवर्स। दिस इज़ 6, तो दिस इज़ 21, दिस और ये आएगा 12 8 और ये 9/x इक्वल्स टू आ रहा है 3 1 और यहाँ आ रहा है 3, तो x की वैल्यू आ रही है 3। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर 5 3 15। एवरेज ABCD इज ए प्लस बी का आएगा 3 6 और 0, सी और ई की एवरेज पॉपुलेशन आएगी 2 4 और 0, डी की पॉपुलेशन निकल जाएगी, तो
5 लोग हैं ना, 0 5 4 0 4 15 1900 बच गया एक क्वेश्चन। एच से एक्स, एच से वी, एच से एक्स नहीं जा पाएगा, हटा दो जयराम जी की। आर से ए देखो, आर से ए आ जाएगा, डन है, ओनली 2 फॉलो कर रहा है। एस से के देखो, एस से इधर जा ही नहीं पाएगा, डन। टी से ओ देखो, टी से ओ यहाँ तक आना है, नहीं आ पाएगा। एच से ओ देखो, एच से ओ सीधे सीधे चले जाएगा। डी से क्यू देखो, डी से इधर आना ही नहीं आ पा रहा है, ओनली 1 फॉलो कर रहा है। वेयर इज़ 1 भाई, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। जे से और एम के बीच का रिलेशन देखना है, ठीक है। जे से और एम के बीच का रिलेशन देखो, ओके ये वाला करेक्ट है, ओनली 1 फॉलो कर रहा है क्योंकि ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए डिफरेंट डेज है, ये वाला करना चाहिए, यस करना है, इसको हटा दो, ये भी करेंगे। सब सेंटर में देख रहे हैं, ये भी करना तो चाहिए, होना तो चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। सर्टन पर्सन है, सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं, बैंक अकाउंट है। इसको सबसे लास्ट में, ठीक है, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। 7 पीपल है, मंडे से संडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अ प्राइम नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द मूवी आफ्टर एफ, तो प्राइम नंबर तो एफ के बाद 2 लोग जा सकते हैं, एफ के बाद 3 लोग जा सकते हैं, एफ के बाद 5 लोग जा सकते हैं, दैट्स इट। 3% वेंट बिटवीन एफ और सी, सी यहाँ तो आएगा ही नहीं, सी, ठीक है। जी वेंट इमीडिएटली आफ्टर सी, जी वेंट इमीडिएटली आफ्टर सी। एज मेनी पीपल वेंट बिफोर जी एज आफ्टर बी, ओनली 2 पीपल वेंट बिटवीन बी और ए, 1 2 ए, 1 2 ए। डी डज नॉट गेट एडजेसेंट टू ए, तो डी यहाँ आएगा, ये वाला केस का आंसर ए बी सी डी ई, ठीक है। वो वेंट आफ्टर मूवी बिटवीन डी और एफ के बीच में एक ही है, ए सॉरी बी है, सॉरी। जी वेंट टू द मूवी, जी ट्यूसडे। हाउ मेनी पीपल वेंट बिफोर ए, 2 लोग। फोर ऑफ द अलग सर्टन वे, सी ए एक का गैप है, एफ डी एक का गैप है, जी ई एक का गैप है, ई वी एक का गैप है, ए डी 3 का गैप है, ऑब्वियसली विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ई वेंट ऑन अ थर्सडे, यस। बी वेंट इमीडिएटली आफ्टर डी, यस नो, बी वेंट इमीडिएटली बिफोर डी है, अच्छा ट्रू बताना है ना। ई वेंट ऑन थर्सडे, सी और एफ के बीच में ज़्यादा लोग गए, ठीक है। ई इज़ द फादर ऑफ डी, डी इज़ डॉटर इन लव जी। अच्छा 1 मिनट, क्या मैं बना सकता हूँ, कैसे बनाना चाहिए मुझे अभी से, ठीक है, बाद में बनाऊँगा। 1 2 3 4, नहीं बस इतने ही है ना, सर्कुलेबल ऑल फेसिंग टूवर्ड, ठीक है। तो ए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। टी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, ओनली 2% सिट्स बिटवीन एस, ठीक है। 1 मिनट, टी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, ठीक है। 2 पेपर सिट्स बिटवीन टी और एस, 1 2 एस, एस के सामने बैठ रहा है कौन, यू, यहाँ नहीं हो पाएगा। 1 2 एस, एस के सामने बैठ रहा है यू, 1 2 एस के सामने, 1 2 एस, एस के सामने बैठ रहा है यू, ठीक है। एज मैनी पीपल क्यू यू टी और आर, राइट ऑफ क्यू देखना है और लेफ्ट ऑफ आर देखना है, ठीक है। क्यू और यू के बीच में आर से देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो आर के लेफ्ट में भी टी के बीच में 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा आर, आर के लेफ्ट से जब मैं नापूंगा, ठीक है। क्यू और यू के बीच में 1 का गैप है, तो टी और आर के बीच में भी 1 का गैप होगा, यहाँ पे ये हो गया। ओनली 1% सिट्स बिटवीन पी और वी, 1% सिट्स बिटवीन पी और वी। डब्ल्यू सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, डब्ल्यू सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। और वी छोड़ के एक पी बैठा हुआ है, तो वी के लेफ्ट में 1 2 डब्ल्यू आ जाएगा, वी 1 2 डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, वी 1 2 डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, तो वी 1 2 और डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, वी 1 2 डब्ल्यू आ जाएगा, वी एक छोड़ के पी यहाँ नहीं आ पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं आ रहा है, तो ये वाली करेक्ट है, ये वाली गलत है। सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। इफ़ इज़ डब्ल्यू रिलेटेड टू वी है, दोनों के बीच में 2 का गैप है, और डब्ल्यू जो है वो वी के लेफ्ट में है। क्यू इज़ रिलेटेड टू आर, क्यू लेफ्ट में है, आर के 2 का गैप है।
तो रिलेटेड टू द एस, तो एस से कौन रिलेट करेगा भाई, आर रिलेट करेगा। ऑल पर्सन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पी। अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पी, तो पी एक्सक्लूडिंग पी, क्यू आर एक, एस टी यू वी, 3 लोग हैं। सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, वी पी अपोजिट है नहीं है, पी डब्ल्यू अपोजिट है नहीं है, टी आर अपोजिट है नहीं है, वी आर अपोजिट है यस। थर्ड राइट ऑफ यू कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। बाद में करेंगे इसको। कौन सा नंबर 83 है ना, 84 तो मेरे को करना ही नहीं है अभी। सर्टेन नंबर लीनियर रो में बैठे हुए हैं, कौन कौन है, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, एच सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है सारे सारे नॉर देख रहे हैं। ओनली 1% सिट्स बिटवीन एच और डी, ठीक है एच और डी। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। नंबर ऑफ पर्सन सूट सिट्स बिटवीन ई और ए इज़ 1 लेस देन नंबर लेफ्ट ऑफ एच। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 1 लेस देन है ना, तो ई और ए के बीच में कौन है, एक ही बैठा हुआ है, तो 2 बैठे होंगे इधर साइड, ठीक है ये होगा। एच और ई के बीच में कितने बैठे हैं, एस राइट ऑफ जी बैठे हुए हैं, ठीक है। और जी सिट एग्जैक्टली बिटवीन ए और सी, सी हु सिट्स एक्सट्रीम राइट, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एच और ई के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो जी को एक्सट्रीम बैठना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। एच और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी कितने बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे, ओके। और जी सिट एग्जैक्टली बिटवीन ए और सी, सी हु सिट्स एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे एक ही आदमी आएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेस देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ठीक है। ई और एच के बीच में लेस देन 2 बिठाना है ना, लेस देन 2%, यहाँ तो एग्जैक्ट 2 बैठे हैं। डी और सी के बीच में ज़्यादा बैठे हैं, ई और डी के बीच में यहाँ बैठे हैं बस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज 8 मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 8 16 24 32। हाउ मेनी पर्सन सिट्स इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन डिफरेंट नंबर ऑफ द रैंक्स, ठीक है। बाद में करेंगे इसको यार, 88 है ना, 89 90 91, ठीक है। 8 बॉक्सेज अनदर नो बॉक्सेज केप्ट, 0 इज नॉट एन इवन नंबर ऑब्वियसली, एन इवन नंबर ऑफ विच इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप, सेकंड फ्रॉम द टॉप। अगर पोजीशन दे दी है तो मेरे को यहीं से शुरू करना पड़ेगा, 8 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1। क्या बोल रहा था, कैप्ट बिलो के विच इज़ नॉट कैप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप, तो के यहाँ नहीं आएगा। और इवन नंबर जो है उसके नीचे रखे हुए हैं, तो 0 इज़ नॉट इवन नंबर, 2 तो होगा के 1 2 3 4 के 1 2 3 4 5 6 के यहाँ आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है, 2 ही केस बन रहे हैं। के और ओ के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ओ एज बिलो एम, G is kept 4 boxes above N, ओके ओनली वन, N और L के बीच में एक ही बॉक्स है। I kept immediately below L, I kept immediately below L but above P, but above P के ऊपर है, ठीक है। J और N, J 1 2 3 N आएगा, N एक छोड़ के L आएगा, L के जस्ट नीचे I आएगा, और I के नीचे ये तो बन गया J 1 2 3 N, N के एक छोड़ के L, L के जस्ट नीचे I एंड दिस इज P। हाँ, हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन L और M, L और M के बीच में 1 2 3 3। इफ वी आर ऑल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, तो फिर रिमेन अनचेंज, तो I J K L M N O P 2 बॉक्सेस, M I J K सॉरी K और O। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ N विद रिस्पेक्ट टू K, जस्ट अबव। each of the kept 4 boxes above the box which is immediately below M, के 4 boxes above पूछ रहे हैं ना, 1 2 3 I
True with respect to the final arrangement. N is kept 2 boxes above P. No. O is kept at the topmost position. No. Only 2 boxes kept between K or M. No. 1 box is no box are kept below box I. No. As many boxes kept above J as below P. Yes. How many vowels बाद में यार ये सब में रोना आ जाता है मुझे. यहाँ से शुरू करूँ क्या? A is the father of D. A is father of a D. D is a daughter in law of G. तो D जो है daughter in law है G की. ठीक है. E is the grandson of G. तो इनका ही बेटा होगा E. लगा के देखते हैं. And E is the nephew of H. H is the daughter of F. F is the sister of C and C is a brother-in-law of A. G is the father of only one son. G is the father of only one son. H. ठीक है. तो H को यहाँ कर देता हूँ मैं एक बार. H is the daughter of F. F की शादी इससे करा देता हूँ. F is the sister of C. अगर F is the sister of C है तो बेसिकली ये मेल हो जाएंगे. C is brother-in-law of A. ओहो, तो यहाँ पे अपोजिट बन रहा है भाई. अपोजिट बन रहा है. रुक जाओ. ए यहाँ पे आएगा डी. डी की शादी जिसके भी साथ हो रही है. ओके. एंड दिस इज जी. ओके. यहाँ पे आएगा ई इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ व्हाट. ई इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ जी. ओके. ई इज़ द नेफ्यू ऑफ एच. एच डी की बहन बनाते हैं. नेफ्यू बना रहे हैं. एच का भी कोई डिसीजन नहीं है. एच इज़ अ डॉटर ऑफ एफ. यहाँ पे अगर मैं F की शादी इससे करा देता हूँ. ओके. F इज़ अ सिस्टर ऑफ C. ठीक है. एंड C इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ A. यहाँ पे बन गया पूरा पूरा. G इज़ द फादर ऑफ ओनली वन सन. ठीक है. दिख रहा है. तो कौन हो सकता है वो? कोई भी नहीं है. किसी का नहीं दिया. इफ़ B इज़ द फादर ऑफ E देन हाउ B रिलेटेड टू F. B इज़ सन इन लॉ ऑफ F. हाउ मेनी फीमेल मेम्बर्स आर इन देयर फैमिली? 1 2 3 3 3. D related to C. D is a niece. Niece. 83, 84. 7 people at different. ठीक है. 7 6 5 4 3 2 and 1 people different bank. N has fourth highest amount. N has 1 2 third और fourth. N यहाँ पे आएगा. ठीक है. N हैज़ मोर देन L बट लेस देन M. तो M ऊपर आना चाहिए यहाँ कहीं पे और L नीचे कहीं आएगा. ठीक है. Q हैज़ मोर देन O. अच्छा. Q हैज़ मोर देन ओनली O. तो Q के O से ज़्यादा है सिर्फ. तो L यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली. बट लेस देन P और K. P और K भी ऊपर ही रहेगा. P M के आ गया है. ठीक है. एज मैनी पर्सन है मोर देन P लेस देन O. तो P सबसे ऊपर. M does not have the highest amount obviously यार and has more than K. तो M यहाँ और K यहाँ. ठीक है. The person who has third highest amount this is K 5890. K और P का सम दिया हुआ है तो P निकल जाएगा. तो 13146 में से 5890 निकालेंगे तो 6 यहाँ 5 और बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 10. सॉरी यहाँ बचेगा 10 में से हट गया तो 2 और 5 6 7 7 2 5 6 निकल रहे हैं. और द डिफरेंस बिटवीन P और N इज़. तो यहाँ तो P आया ना भाई. P और N के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1724. तो 1724 को फिर से 2 दिस इज 3. 7 में से यहाँ 5 में से 1 5 5532. हाँ 5532. हाउ मेनी पीपल हैव मोर देन K's अमाउंट 2. व्हाट इज द पॉसिबल अमाउंट विद M. 5890 से ज़्यादा होगा. 15 भाई बहुत ज़्यादा नहीं है ये. बट खैर क्या मैं ये लगा सकता हूँ 5890. कांट बी डिटरमाइंड कैसे हो सकता है भाई. डिटरमाइंड तो कर ही सकते हैं ना. P यहाँ पे कहीं पे ये लिखा है क्या है ना. यहाँ तो 15 हो सकता है. उसके इससे भी ज़्यादा हो. 83 84 ये तो नहीं बनता है. ज़्यादा दिक्कत आती है. सीरीज बिटवीन फर्स्ट फ्रॉम द. भाई ये मेरे को याद नहीं है. सीधी बात है. इसको ज़्यादा करके कोई सेंस नहीं बनता. पेपर में भी मैं ये नहीं कर पाऊँगा. इसके लिए मुझे वो चार्ट बनाना पड़ेगा.
5 मिनट है वैसे मेरे पास, पर कोई नहीं, हटाओ। ये वाला तो मैं करूँगा उसमें भी। 2 6 4 5 7 6 8 9 2 1 8 डिजिट्स है इवन नंबर, तो इवन नंबर वाली को मार्क करो पहले तो, ठीक है। ड्रॉप करना है रिमेनिंग डिजिट जो बच रही है, दिस इज़ 2 4 7 8 2 और 8। इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है लेफ्ट हैंड से, तो 2 2 4 7 8 और 8। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूब वैल्यूज़ ऑफ नॉन रिपीटेड डिजिट्स, क्यूब वैल्यू ऑफ नॉन डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, तो 4 और 7 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। क्यूब वैल्यूज़, 4 का क्यूब होगा 64, 7 का क्यूब होगा 343, इनके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ बच्चेगा 13 में से 4 गया तो बच्चेगा कितना, 9। लास्ट में 9 किस में आ रहा है, 279, दिस वन ओनली 9, ठीक है। डिफरेंट, क्या मैं इसको ऐसे ही कर लूँ बिना चार्ट बनाए, डिफरेंट, डी ABCD EF GHIJKL नहीं हो रहा है, IJKLMNOP IJ FGHIJKL FGH ठीक है, ABCD EF GHIJEFGHI RSTU नहीं, RSTU ABCDEFGHI नहीं आ रहा है, तो फिर उसके आगे तो जाएगा जी NNOP, इधर तो कुछ है ही नहीं ना, एन के इधर, टी से इधर भी कुछ नहीं आ पाएगा, सिर्फ 2-3 मिनट है, बट ठीक है, आप कौन ही करेगा इसको भी, तराज आता है ये करने में। ऑर्डर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 मिनट, इसको मैं जमा तो सकता हूँ ना, FOG क्या आ रहा है, F पहले आता है, G आता है, फिर O आता है, फिर JAR, तो A आएगा, J आएगा, R आएगा, LOT, 1 मिनट, MNLOP, तो L पहले आएगा, लॉट आएगा, फिर वॉज आएगा, फिर BOS बस आएगा। 1 मिनट यार, शिट, अंदर थोड़ी जमाना है, बाहर बाहर जमाना है ना। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, बस आएगा, फिर कौन सा आएगा, EABCDEFGHIJ, ठीक है, तो F पहले आएगा, फिर JAR आएगा, फिर LOT आएगा, फिर WAS आएगा, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 LOT, ये if all the not reverse alphabetical order, then how many words will start with the consonant, ठीक है। तो O पहले आ जाएगा इधर साइड, तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं ना, असेंड रिवर्स में, तो यहाँ R आ जाएगा, यहाँ पे OMNOP, अच्छा T बाद में आता है, S में आता है, W बाद में आएगा, फिर BU STU U लास्ट में आएगा, तो ठीक है। तो कॉन्सोनेंट से चालू होने वाले कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 है। If all the given word are in dictionary order from right to left जमाना है, 1 मिनट भाई साहब, राइट टू लेफ्ट जमाना था क्या, शिट रे, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को, 1 2 3 और 4, सॉरी फॉग है भाई, फॉग है, फॉग आएगा, फॉग है, यह तो नहीं बता पाएंगे। If the position of first and third letter are interchanged, how many words from meaningful letter, तो GOFRAJ, ये भी कोई वर्ड नहीं है, TOL टॉल, SAW सॉ, SUB सब, सौर सब, ये हो सकते हैं 2, लास्ट के 2, पर क्या मतलब होता है ये नहीं पता है। If all the letter arranged within each word left to right remain unchanged, अच्छा अंदर ही अंदर, तो FGO AJR LOT, ये तो करेक्ट ही है ना, MNOPQ LMNO, ठीक है। तो ASW और BSU, तो एक ही वर्ड है जो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो है LOT 1, ठीक है, दिस वन। इतनी मेहनत करने के बाद भी 90 टच नहीं हो पा रहा है क्लर्क में भाई साहब,
यहाँ पे 9 क्वेश्चन नहीं कर पाए फिर भी मेरे से। 74, फिर भी 5 गलत है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत है, इनकरेक्ट 4 है, मतलब बेकार काम भाई। 5 नंबर की ग्रामर नहीं बनी। 5 नंबर का क्या सेक्शन है? वीक फिलर्स नहीं, एरर डिसेक्शन और मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ज़रूर वो रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर बेस्ड, इसलिए वो गलत हो गई। कंटेक्सचुअल बेस्ड होता ना वो, तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस में तो पूरे सही थे। यहाँ पे देखो ए, ई और बी, डी। सी एफ में क्या रॉन्ग है ये देखो पहले। सी एफ, द कमिटी रिकमेंडेड दैट पब्लिक सेक्टर मॉडिफाइज इट्स स्ट्रक्चरल लैंडिंग टर्म्स टू असिस्ट, ठीक है, सबजंक्टिव कंडिंग मूड आफ्टर above recommendation mandate or request the dependent that must use the base form of the verb modifies। तो modifies की जगह क्या आएगा? modified, modify। इट्स ओके भाई, बेसिक है इसमें, वही है, ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर बेस्ड में दिक्कत रहती है भाई। अरे ये क्यों गलत हो? द हॉनेस्ट ऑफिसर सीज्ड द स्टोलन गुड्स recovered from the deserted road and कोई बात नहीं। यहाँ पे गलत जो हुआ था, रिप्रोच का मतलब क्या होता है? अच्छा, मीनिंग टू क्रिटिसाइज और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम विद रिप्रोच, तो ये 1 और 2 होना चाहिए, करेक्ट है ना। द न्यू पॉलिसी वर डिजाइन टू रिप्रोच, डिसडेन थोड़ी होगा यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोच यानी होता है डिस्गस्ट, डिस्गस्ट नज़रों से देखना, मतलब क्रिटिसाइज है, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल है, ठीक है। फू 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 ग्रामर पे काम करना चाहिए अपने को। यहाँ पे ये मैं कर सकता था क्या? नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड यार, सही में यार, यहाँ पे लग ही रहा था मेरे को, आंसर नहीं आया जब। कौन सा नंबर का है ये? 58। एक कर सकता था। मेंसुरेशन में तो फार्मूले याद नहीं है। इसमें क्या गलत हुआ यार? माइनस पी ही तो किया था मैंने 18। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही गलत हो गया मेरा। 21/100 यहाँ सब सही था, यहाँ पे ये 13104, ये 31 आया ही नहीं मेरा। मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक हुई यहाँ पे। 60 पे 63 तक तो मैं पहुँचा ही नहीं था, है ना। ये वाला आंसर आ जाता मेरा। 65 फीमेल पॉपुलेशन। अरे यार इतना इजी परसेंटेज कभी छूट गया। 1 2 3 कहाँ पे टाइम वेस्ट किया मैंने? फर्स्ट वाले पे, हाँ ऑब्वियसली ये वाले पे, ये तो ठीक था, ये वाले पे टाइम वेस्ट किया है। इस पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, 2 मिनट लगा दिए इस पर, जबकि इस पे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे बस। 2 मिनट लग गए इसमें, ठीक है। फिर रीजनिंग एबिलिटी में इट्स ऑल गुड भाई, इसमें अपने को ये बनता नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब ये हालत है अभी पेपर की हालत ये रही। 79 इसी के ऊपर आसपास ही घूम रहा हूँ मैं। और इसके पहले मैंने एक दिया था, ये कब दिया था? 75 थे इसमें, 66 अटैम्प्ट, नहीं कितने अटैम्प्ट थे? 78 थे। इसमें ज़्यादा एरर नहीं थी। 25 नंबर, 3 स्किप थे, 2 गलत थे। 23 न्यूमेरिकल में, 28 न्यूमेरिकल में कहीं भी नंबर नहीं आ रहे हैं। क्वांट तो हालत ख़राब है भाई, ठीक है, डन।